abandoned by their loved ones, humiliated by their surroundings, facing loneliness in this overly populated world. Transgender people can be found being denied the core rights in the same world in which we exist together. हिजड़ा छक्का पौने 8 जन खा मतलब लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। लोगों को ये लगता है कि वो जो चाहे मर्ज़ी बोल दें, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। मांगने जाते हैं या फंक्शन पे जाते हैं तब भी मतलब काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहीं से ले लो, हम लोग तैयार होकर गली से निकलते हैं तो लड़के यहीं से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि बाज़ औक़ात फंक्शनों में पत्थर तक मारते हैं, और फंक्शनों में जब ड्रिंक लोगों ने की होती है वो बदतमीज़ी भी करते हैं। 10 रुपये देते हैं तो बोलते हैं उसकी चुम्मी ले लो, उसकी गोद में बैठो। तो इस तरह की हरकतें होती हैं हमारे साथ। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ जो ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा जो स्टेट आर्टिस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ जिसने सियासत में हिस्सा लिया। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ जिसने औरतों और बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स मैंने ऑलरेडी चैलेंज करती हूँ। मैंने अंदरून सिंध और बलूचिस्तान वहाँ लगाए जहाँ एक परचून की दुकान पे सर दर्द की गोली नहीं मिलती थी, मैंने वहाँ काम किए। पाकिस्तान के पहला ख्वाजा सराओं का इदारा जिसने नई रोशनी हेल्पलाइन को 300 बच्चे ढूंढ के दिए हम लोगों ने फ्री हैंड। इज्जत से कमाना चाहते हैं लेकिन ना हमें कहीं अच्छी जॉब मिलती है। हमारे पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो फंक्शन करो, डांस करो, या तो ब्रेकिंग करो, या तो सेक्स वर्क। Supporting you no matter who you are. It is the only thing to do.
It was the wrong thing to separate them from the society or marginalize them or send them to a culture or a cult which has developed over the years. It is wrong. Why should they not be part of the mainstream? I don't see any reason. You see, I don't. If they want, if there is a natural urge in somebody to sing and dance, don't we all? A lot of us just break into a dance at some point or just break into a song. Do you hold that against us? Should you? Why them? Why push them in that corner? Why send them to those small colonies, those dingy places that they live in? Why deprive them of their birthright of being part of a society, a family, being loved, being respected? I'm nobody to give you that right. It is yours. It is theirs. We are nobody to give it to them. When we take that away from them by virtue of whatever power we think we have in the society, that is wrong. Being part of the family, being loved as a sibling, as a child, how can that be even argued with? Is there even a discussion on it? How can there be? आप किसी इंसान को काम ही नहीं देंगे, जॉब ही नहीं देंगे। ख्वाजा सराओं को ब्यूटिशियन का काम आता है, टेलर मास्टर का काम आता है, कुकिंग का काम आता है। वो किसी भी बेहतर बंगलोज में काम कर सकते हैं, दफ्तर में पियोन का काम कर। जब आप उनको काम नहीं देंगे तो ज्यादातर ख्वाजा सरा बैगिंग पे लगे हुए हैं। कुछ ख्वाजा सरा रात को डेक प्रोग्राम पे जाते हैं, तो यकीन जान लें उनके साथ भी आए दिन तशद्दुद, ज्यादतियां, और उनके साथ वो कुछ वहां पे होता है कि आपकी सोच तंग पड़ जाएगी। Ladies and gentlemen, I forgot that we live in a gendered world where when he says something, they said he said. Or when she said something, they said she said. But when I say something, they said he, she said. No. He said. It said. Well, ladies and gentlemen, क्या ख़वातीन और हज़रात के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं? मैं कौन हूँ? खुसरा, हिजड़ा, ज़नखा, ज़नाना, ख्वाजा सरा, टीची, a female, a eunuch, an abbreviation, or just an it. Ladies and gentlemen, tonight I am going to add something to change the tune. Ladies and gentlemen, and all Murats of my world, welcome to the third tune. तीसरी धुन।
ये सारी चीज़ें घर वालों को पता होती है कि उसके औलाद क्या है। Their situations are complicated given the societies that we live in. The parents have to be more vigilant, they have to be stronger, they have to be more clear-headed as compared to the easy upbringing of a girl or a boy. They will ask you a lot more questions, you will have to answer a lot more relatives, you will have to be much stronger, but why not? Why not? एक इंसान है, हम इज़्ज़त चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम फंक्शन में जाते हैं, हमें ख़तरा हो तो हम जाते तो हैं, हमें पता हो तो हम जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता तो हम वापस आएंगे ज़िंदा, ये पता नहीं कि साल में वापस आएंगे। एक ख्वाजा सरा को मेन रोड के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है और मुझे रात के 4 बजे कॉल आती है और उसकी लाश 3 घंटे एम्बुलेंस में लेके खड़ी होती हूँ और उसके घर वाले नहीं आते हैं, बोलते हैं हम आ रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ आप इनके वारिस हैं, अगर लाश लेना चाह रहे ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो हूं ना। मैं तो अपने कंधों पे अपने लोगों की लाशें उठाती आई हूँ, मेरे लोग मेरी गोद में दम तोड़ते आए हैं, चाहे वो इलाज की सहूलियत ना मिली, चाहे किसी ने तशद्दुद किया। हमें सब कुछ खुद अकेले फेस करना होता, वो चाहे जैसा भी हो। हम अगर रोएंगे तो रो के भी क्या करेंगे, कौन है देखने वाला, सुनने वाला। माशरे को चाहिए कि माशरा अपने अंदर से सख्ती को ख़त्म करे, इनके बारे में इनके साथ तावन करें, इनको तावन के साथ साथ अपना नसीहत भी करें कि ये बुरे की तरफ न जाएं, अच्छाई का काम करें, बैठ के खाएं और इज़्ज़त का काम करें। माशरा इनके लिए अपने अंदर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करे, इनके लिए रहम का सलूक करे, इनके साथ झिड़क वाला, तंदखोई वाला और शिद्दत वाला रवैया इनको दूसरी तरफ जाता है। और ये तो एक हकीकत है कि जहाँ भी शिद्दत होती है उसके मुकाबल भी फिर कोई ना कोई गलत काम ही होता है। रिलीजन के ठेकेदार अलहदा अलर्ट हो जाते हैं, सोसाइटी के ठेकेदार फलाने अलहदा अलर्ट हो जाते हैं, फलाने किस्म के ग्रो जो हैं वो अलहदा से अलर्ट हो जाते हैं। सो बात कहनी इतनी आसान नहीं है इनकी। सो आप उसको जितना कम स्कैंडलाइज करेंगे वो शायद उतनी ही चुप करके कहीं ना कहीं अपनी जगह बना करके चली जाएगी। जॉब तो हमें कोई मिलती नहीं और यही था कि बस गुरु ने लगा दिया बधाइयों पे जाना, मांगने पे जाना। इसके बाद फिर एक काम ही रह जाता था, जब वो काम नहीं होता तो सेक्स वगैरह भी कर लिया। लोग कुछ डिमांड करते थे तो फिर उनके साथ करना पड़ता था। मैं एक खुश नसीब लोगों में से हूँ कि मेरे को जॉब मिली हुई है और मैं जॉब कर रही हूँ, इज़्ज़त की रोज़ी कमा रही हूँ। दिल बहुत खुश होता है और अभी भी मैं रोड पे जा रही होती हूँ तो जब कोई मुझे मतलब 5-10 रुपये देने की कोशिश करते हैं तो मैं उनको जब टोकती हूँ कि भाई मैं जॉब करती हूँ तो मेरा दिल उस वक़्त बहुत बागो बहार होता है। नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं जॉब करती हूँ भाई। मैं किसी बस पे बैठ गई तो किसी ने किराया दे दूँ तो उसमें नहीं आप नहीं, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई आप लो, मैं जॉब करती हूँ। तो उस वक़्त मेरा दिल बहुत बागो बहार और बहुत खुश हो रहा होता है। हम लोग कोई तीसरी दुनिया से आए हुए कोई मखलूक तो नहीं है ना, हम लोग भी इंसान हैं। जैसे हमारे अंदर रूह है लड़कियों वाली, लेकिन हमारे घर वाले तो हमें लड़का ही एक्सेप्ट करते हैं ना। जब हमारे ख्वाजा सारा मर जाते हैं, हमारे घर वाले ले जाते हैं, वो अब मेकअप लगा के हमें बाल बढ़ा के तो नहीं दफनाने जाएंगे ना कि ढोल ढमक्के लगा के। ज़ाहिर जैसे लोगों का, आम लोगों का जनाजा होता है, हमारा भी वैसा ही होता है।
ये भी इशू उठाते हैं इस पे भी। अगर तो वो मर्दों की तरफ मुतशाबे है तो उसकी जनाजा मर्दों की तरफ पढ़ी जाएगी। अगर ख़वातीन की अदा और गुफ्तार है और वो खुनसा मुश्किल में आता है तो उसकी ख़वातीन की तरह नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब हम लोग एक MBBS करके क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, उसमें भी कभी भी हमने एनकाउंटर ही नहीं किया कि हमारे पास ये ख्वाजा सरा अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएँ। तो कभी उन्होंने भी पहल नहीं की और दूसरा हमारी तरफ से भी पहल नहीं हुई। माशरे के अंदर अवेयरनेस देने के लिए उलमा को और जो संजीदा तबका है और जो हमारे TV टॉक शोज़ हैं, इसका हिस्सा उन लोगों को बनाना चाहिए जो इनके बारे में अवेयरनेस दें। HIV जो बढ़ रहा है वो तो जाहिर सी बात है, जो भी इनके मेथड्स हैं यूज़ करते हैं। एक तो नंबर 1 उसकी ज़रिया माश जो उन्होंने अपना बनाया हुआ है, नंबर 1 ये। दूसरा, इनको एक तो अवेयरनेस नहीं है। अगर हम रोकथाम करना भी चाहें तो सबसे पहले तो इनको बताने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है, किस तरीके से हो रहा है और इसकी रोकथाम करने के लिए हमारे पास क्या क्या ज़रिए हैं। इस दफ़ा मतलब मर्दमशुमारी में जो रिज़ल्ट आए वो बड़े हैरान कुन रिज़ल्ट थे कि 10,406 चुनाचे जो HIV एड्स की रिपोर्ट है पूरे पाकिस्तान की, उसमें 1.5 लाख ख्वाजा सरा HIV पेशेंट बताया गया और उसमें वाज़े तौर पर लिखा है अगर ना रोकथाम करी गई तो 3 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। इनको भी चाहिए कि ये अपनी शबाहत वही ओरिजिनल रखें, चेहरे से, चाल ढाल से, जैसे ये हैं। अगर मर्दों में से हैं तो मर्द बन के रहें, औरतों में से हैं तो औरत बन के रहें। ये जिस्म मुझे मेरे रब ने दिया हुआ है, मैं जो मर्जी चेंजिंग करूं वो तो मैं जानूं, मेरा रब जाने ना। आप कौन होते हैं उसका इशू उठाने वाले, आप कौन होते हैं मेरे पे तंज करने वाले। इनको अलग से ट्रेन किया जाए, इनको नौकरियां दी जाए, इनको मसरूफ़ किया जाए ताकि ये बुराई से बच जाएं और दूसरों को बुरा होने से बचाएं। Pakistan has given them the rights to nationality. You will see that there is a third gender option in our identity card, which was not there previously. But that has only come about because of the long running struggle that the transgenders have put up and the kind of organizations that they work with, the time that they've invested and their own realization and learning of their right. So all that I will say is, like, I'm nobody to sermonize, but I'm just saying that anybody who's different is just different. That's it. Doesn't mean they're any less or more. They're just different. And variety is the spice of life, right? All kinds make a world. All kinds of self-sufficient, functional people make up this beautiful world. जब ID कार्ड का मरहला आया तो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता ना नादरा को, उसने जी बहाना एक ढूंढा कि हमें कैसे पता चलेगा असली ख्वाजा सरा कौन है, नकली ख्वाजा सरा कौन है, इसलिए इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो हमने उस टाइम मुजाहरा करके प्रेस वाला पे बोला कि नो मेडिकल चेकअप। क्या हमें काउंसलर बताएगी कि हम क्या हैं, जहाँ हमें एक डॉक्टर बताएगा कि हम क्या, हमें पता है कि हम क्या है ना। अगर मेडिकल चेकअप होना है तो फिर पूरे लोगों का मेडिकल, औरतों का मेडिकल चेकअप हो, मर्दों का मेडिकल चेकअप हो, क्या पता फिर उनमें से कोई ख्वाजा सरा निकल आए, फिर हमें भी शक है। जब दूसरों पे बात आई, सिविल सोसाइटी पे बात आई, तो लोगों ने बोला नहीं ये गलत बात है मेडिकल चेकअप। फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है कि नो मेडिकल चेकअप। खुदारा हम लोगों के लिए मतलब अच्छा सोचो, कोई जॉब निकालें हमारे लिए। जैसे कि मतलब कि हम लोग कोशिश करते हैं कि भले सफाई का काम दे दें हमारे ख्वाजा सराओं को, अपने घर में एक सब करें, बच्चे भी खिला सकते हैं हमारे ख्वाजा सरा। हम ब्यूटिशियन होते हैं, एक ख्वाजा सरा मतलब जैसा भी हो, मेकअप भी अच्छा कर लेता है, खाना भी अच्छा बना लेता है, बच्चों को भी पाल सकता है, वो सफाई भी अच्छी कर सकता है। अगर अपने घरों में मतलब एक ख्वाजा सरा है भी जॉब पे रखें ना, तो मतलब कि सबके प्रॉब्लम काफ़ियों के सॉल्व हो जाएंगे।
मैं यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ, वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो इंसानी हकूक़ के इदारे, जो जो लोग हस्बे तौफीक है, जो लोग मदद करना चाह रहे हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप आएँ। जो मेरे लोग बेचारे बेरोजगार है, बेगिंग करते हैं, सेक्स वर्किंग करते हैं, आए मेरे साथ, उनका वजीफा बांधे, उनको हुनरमंद बनाए, वो अच्छे तरीके से रोजी रोजगार कर सकें और आपके लिए दुआओं पे हाथ उठाएं। हम अगर गलत काम ना भी करते हो तो सबके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम ट्रांसजेंडर हैं ही गलत, भले हम गलत काम ना करते हो। हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ऐसी हैं जो जॉब कर रही हैं, ठीक है, इज़्ज़त से अपने घर पे बैठी हैं, अगर वो भी बाहर निकलती तो उनको भी उसी तरह से जलील करते हैं। रेप भी हमारे ख्वाजा सराओं के साथ हो जाता है, तो इस काम में भी लोग बहुत आगे हैं। अगर हम लोग मना करते हैं तो फिर हमें मारते कूटते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो शीमिल्स के बाल तक काट देते हैं, जो कि हमें बहुत बड़ा सदमा होता है। पारो नाम है इस ख्वाजा सरा का, आप देख सकते हैं कि इतना इसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये अब्दुल्ला गोट की रिहायशी है और अंदरून सिंध से है और यहाँ पे मतलब मुकीम थी, और उन जालमों ने अपनी तरफ से एक तरह के इसको कत्ल करके मार के समझ लो वो फेंक के गए थे। आगे खदड़ों को मार देते हैं, उनको मतलब कि उनके बाल काट देते हैं, उन पे एसिड फेंक देते हैं। वो जो हवस के प्यासे लोग हैं, जब ख्वाजा सरा उनकी डिमांड नहीं मानते तो वो लोग मतलब अपनी मतलब मर्दानगी दिखाने के लिए भी, इनके साथ तो माँ बाप भी साथ नहीं है, इनके साथ तो गवर्नमेंट भी साथ नहीं है, इनका तो कोई वली वारिस नहीं है, आप इनको मार दें। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ पैसों के लिए जो है ना किसी के सामने खुद को बिछा दूं, ठीक है, वो किसी भी तरह मुझे नोचे, यूज़ करे, नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत जो है ना घुटन सी होती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। कोई लकड़ी थी ना के लिए उससे मुझे यहाँ पीठ पे मारा, यहाँ पर मारा, मैंने भी कोशिश की मारने के लिए, मुझे 6-7 थे तो मैं नहीं कर सकती थी मुकाबला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोशिश की काफ़ी मुझे यूज़ करने की, जो भी उनसे वह एक दो ने मेरे साथ सेक्स भी किया। बंद करके मेरे साथ रेप करना चाह रहे थे वो लोग, तो मतलब टीटी निकाल लिया, बोला तुम कपड़े उतारो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मैं डर गई, मैं रो भी रही थी। अगर हम थाने के अकेले जाते तो यही बोलते हैं यार तुम लोगों का तो काम ही है, अगर वो इस तरह से करे तो कर लो, क्या है, तो ये क्या बात हुई, कर लो तो क्या है। इन्होंने मेरा डंडा उठाया है, मुझे बोलते हैं तू घुसरा नहीं है, ये कैसे बोल सकती मैं घुसरा नहीं है। थाने में ही मजाक बनता है हमारा, थाने में जो के मतलब के पूरी आवाम के मुहाफिज बैठे हैं, उन लोगों को तो ये चाहिए ना कि भी हमारे जैसे दूसरे आम लोगों को वो प्रोटोकॉल देते हैं, हमें ख्वाजा सरा को भी उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए। लेकिन पहले तो हमें देख के पहले इंस्पेक्टर से लेकर जो बाहर खड़ा चपड़ासी होगा वो भी हमें देख के हंसेगा, तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम लोगों के साथ भी कुछ होता है क्या। अरे भाई हम इंसान नहीं हैं। अगर हॉस्पिटल में चले जाओ तब भी हर बंदा पूछेगा, गार्ड भी पूछेगा दांत निकाल के तुम्हें क्या हुआ, तुम लोगों के साथ क्या हुआ। यार हम लोग बीमार नहीं पड़ सकते, हमारे साथ कोई मसला नहीं हो सकता। मेरी ओपीडी में भी कोई आए तो मेरे जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो भी मेरी ओपीडी में ना बैठे। कातलाना मेरे पे हमला हुआ, कहते मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला होता है। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शी, फिर बाहर मुल्क की ऑफ़र भी आई तो मैंने बोला मैं अपने लोगों कम्युनिटी को छोड़ के नहीं जाऊँगी, अगर मुझे मौत आनी तो यहाँ भी आएगी वहाँ भी आएगी, तो मैं मुल्क छोड़ के नहीं गई। जो रात के ख्वाजा सरा सेक्स वर्कर हैं जो रोड पे खड़े होते हैं, उनको पहले तो पुलिस वाले आएंगे, वो भी डराएं धमकाएंगे, वो ये नहीं कहेंगे यहाँ से चले जाओ, वो लोग ये कहेंगे कि तुम लोग कस्टमर को ही वो करते हायर करते हो ना, तो हमें फ़ोन कर देना, हम लोग ऊपर से आ जाएंगे, तुम लोग भी खर्चा बनाओ हम लोग भी खर्चा बनाएं, ठीक है। जब ऐसा नहीं करेंगे तो वो डंडे भी निकाल लेंगे, ये वो जब 4 लोग सामने आ जाएंगे पुलिस वाले, फिर डंडे भी मारना शुरू कर देते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी अच्छे लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे बुरे लोग हों जो कि इस तरह ख्वाजा सराओं को अब्यूज़ करते हैं, उस तरह उनको साथ कोई इस तरह के बदतमीज़ी या उनके मतलब कोई यूज़ उनको करते हों, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। ओवरऑल पुलिस सही है और पुलिस उनके साथ बिल्कुल जिस तरह चाहें वो फेवर देती है उनको, और जो अगर वो चाहें तो वो काम करने की उनके साथ कोशिश करती है, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। रास्ते में आ रहे थे, गाड़ी ने हमें मारा, हम लोग इधर आए, हमें मारा, वो बड़ा पैसों वाला था, उनको छोड़ दिया और हमें यहाँ से निकाल दिया। क्या चीज है, हम लोग इंसान नहीं है क्या, हमें जीने का हक नहीं है क्या, तो मार दो पेट्रोल डाल के, जला दो। बेशुमार लोग रोडों पे हमारे कत्ल हो रहे हैं, आए दिन उनकी इज्जत पामाल करी जाती है, उन पर तशद्दुद उनको नोचा जाता है। खुदा ना आए, कब आएंगे जब हमारे लोग सफाई हस्ती से मिट जाएंगे,
ये कम बात नहीं है कि एक सूबे में 161 लोग कत्ल होते हैं और एक ख्वाजा सरा के टोटे टोटे कर देते हैं, जहां पे इंसानियत ही कांप जाती है। आप लोग क्या हमारा इंसानियत से जब एतबार उठ जाएगा, जब हमें लोगों से ही नफरत हो जाएगी कि कोई हमारा अपना नहीं, कोई रहम दिल नहीं, किसी के सीने में हमारे लिए दिल नहीं धड़कता, किसी में खुदा का खौफ नहीं, आप लोग तब आएंगे। आए हमारे साथ आके हमारी कम्युनिटी की मदद करें और फिर फख्र से आप कहें कि आपने इंसानियत की खिदमत करी है। हम तो हमेशा आप लोगों के मुंतज़िर रहते हैं। पिछले दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि ख्वाजा सराओं को कत्ल किया गया है, लेकिन ये एक इंसान की इनफरादी सोच हो सकती है। हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें इज्तमाही तौर पे ऐसी कोई सोच लोगों में नहीं पाई जाती। हाँ, कोई शख्स को अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, वो कहता है उसको पुलिस वाले बुरे लगते हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है ख्वाजा सरा बुरे लगते हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक लोग या कुछ चंद लोगों की ये मखसूस सोच हो सकती है। जो लोग नहीं समझते उनके साथ सख्त एक्शन लें ताकि वो दोबारा ये हरकत ना करें। किसी औरत के साथ ज्यादती होती है, सियासतदान सामने आ जाते हैं, टॉप शो पे 1-1 घंटे के प्रोग्राम चलते हैं और अद को नोटिस हो जाते हैं। मगर ख्वाजा सरा को कभी कोई मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेने जाता है, वीडियो वायरस होती है, बालों से पकड़ के खींचा जा रहा है, नोचा जा रहा है, मगर कोई भी सियासतदान उस पर एक हमदर्दी के 2 अल्फाज नहीं देता है ना। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा बातें ना करें, बहुत बातें हो गई, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे हमदर्दी के अल्फाज नहीं चाहिए। आए हमारे साथ आके काम करें, हमें काम दे, हमें इज्जत का रोजी रोजगार दे। हर बात में मुझे अलग कर दिया जाता है, हर बात में मजाक और तंज ही मुझे मतलब कि मिली है। मैं खामोश रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि रो रो के थक गई हूँ, अब रोना नहीं आता, आदत हो गई इन बातों की। We are scared of the mentally challenged, we are scared of the physically challenged, we are scared of the transgender. We are a very scared world. You know, we need to get a grip. We are the ones who need to look at them differently. We are the ones who need to learn to look at them as anybody else. हम लोग जाते हैं लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए, ठीक है ना, 2-4 पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, तो हम क्या बिगाड़ते हैं किसी का? हमें भी हक है जीने का।